Good evening, all, my dear. Good evening, Vanchika. How are you? Good evening, ma'am. Are you able to listen me properly? Yes, ma'am. Okay, fine, fine. मैं एक्चुअली वॉल्यूम मुझे लग रहा है कम है, काफी मैंने करी हुई. Raj Sangam, again your name I need to change. रोज करना पड़ता है. Vanchika, how's your this revision going on? आप लोगों ने क्या किया अभी तक बेटा? Ma'am, we have completed a consumer equilibrium chapter. Today you finished that chapter? Ma'am, no, ma'am, last part, that is consumer equilibrium with indifference curve is left, and the next chapter is completed. Okay, that means ordinal approach, you people are left with that, है ना? Yes, ma'am. So you are also asking the doubts from sir? Yes, ma'am. Ma'am, Okay. Okay. What do you want to say? ma'am, actually, I don't ask the doubts because I have clarified that you have also clarified the chapter. Okay, fine. So others who are having problem, they are asking the doubts, na? Yes, ma'am. Okay. So we were left with in the morning, we were left with two things. One was in case of two commodities, consumer's equilibrium in case of two commodities, and another is ordinal approach. So these two things were left. But again, I'm just telling you, I am not allowed to take your class without your video on. Mr. Dilbag Singh ji, video on कर लो, otherwise leave the class. नहीं तो मैं remove करूंगी, it doesn't look nice. ठीक है? ओके बेटा जी, मैं फिर बता दूं क्योंकि this is from the school side, proper हमें security check लगाना है, and we have signed one certificate even. फिर बाद में कुछ भी होता है तो we are responsible. Means me and you both are responsible. Raj Singham ji, video on. And I'm going to just mute you all now. Afterwards, if you want to ask anything, you can send me in chat. Fine? Yes, Raj Singham ji. Video क्यों off कर लेते हो? You're looking good. क्या problem है? Any problem is there? Are you feeling conscious? Okay, I'm going to pin my video. ठीक है? So let me share the screen. हम लोग कुछ part जो हमारा करने वाला था. मैं check in PPTs में क्या है हमारा? Case of two commodities is there. बजट लाइन है, इंडिफरेंस, चलो ये भी तो हमने करना ही है, ये आपका ऑर्डिनल अप्रोच वाला ही पॉइंट आएगा. सो लेट मी नॉट शेयर दिस. इट इज हियर, ऑर्डिनल अप्रोच, यूटिलिटी अप्रोच. हु वाज आस्किंग मी मैम बता दो, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम हियर. ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बेटा जी.
Okay, so I'm going to share the screen and उसमें हम लोग देख रहे हैं अभी. So this is here. हाँ जी. So here we have difference between cardinal and ordinal utility approach. ठीक है? So in this we are going to cover the almost everything which you want to like ask me in the morning. कि ordinal utility approach क्या होता है? We will just finish with this first. ठीक है? Okay. So are you all ready? Thumbs up तो भेज सकते हो, बोल नहीं सकते हो, वो आपकी मैंने पावर ले ली है. ठीक है? हाँ जी. चलो. So I'm going to start. We are going to cover all these 3 topics. ठीक है? So the first thing, देखो यहाँ पे cardinal utility is the utility wherein satisfaction derived by consumers from the consumption of goods or services can be expressed numerically. मतलब numbers में ये हमें पता चल जाता है. ठीक है? So cardinal utility is measurable in numbers. ठीक है? But if we talk about this, your ordinal utility, so ordinal utility states that the satisfaction which a consumer derives from the consumption of good or service cannot be expressed cannot be expressed in numerical units. ठीक है? So numerically ये express नहीं कर पाते, हम लोग ranks देते हैं. Okay? So when we talk about this approach, cardinal utility approach is quantitative, क्योंकि numbers में हम लोग express करते हैं values. ठीक है? But qualitative में हमारे पास values such ordinal में हम लोग values नहीं दे पाते, positions बता सकते हैं. ठीक है? I can say somebody, he is intelligent, he is not intelligent. So this is qualitative. This is not in the points of numbers. ठीक है? So next is realistic. कौन सा ज्यादा रियलिस्टिक होगा? ऑब्वियसली जो हमें नंबर्स की फॉर्म में हमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज रियलिस्टिक अप्रोच. कार्डिनल इज मोर रियलिस्टिक एज कंपेयर टू दिस ऑर्डिनल अप्रोच. ठीक है? सो ऑर्डिनल वाली इन्होंने यहाँ पे लिखा है कार्डिनल जो है लेस रियलिस्टिक है एंड जो ऑर्डिनल है दैट इज मोर रियलिस्टिक. अब आपको अगर मैं पूरे मार्क्स के अकॉर्डिंगली सब मैं सिर्फ स्टडी के अकॉर्डिंगली मार्क्स दे सकती हूँ. मे बी समबडी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, तो वो ज्यादा मोर रियलिस्टिक नहीं हो जाएगा रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग. ठीक है? अब जो आपकी कार्डिनल यूटिलिटी है दैट इज मेजरेबल इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स, वेयर एज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज ऑलवेज लाइक you measured in the form of ranks, positions. ठीक है? So marginal utility analysis is the part of this cardinal utility. So इसको marginal utility analysis भी कहते हैं. So ordinal utility approach को हम लोग indifference curve analysis भी कहते हैं. So this is the point. Next is promoted by classical and neoclassical economists. So cardinal utility को promote किसने किया था? Mainly जो इनको लेके आए थे, they were the classical and neoclassical economists. ठीक है? So ordinal utility approach की अगर बात करूँ तो modern economists they supported this. अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो you can take the screenshot of this. This is something very interesting one. बुक में है तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप लोग. Okay? I guess it is fine. So shall I move to the next one? I can move to the next. हाँ जी. Okay. So here is introduction about ordinal utility approach. So ordinal utility approach का ही आपने पूछा था मॉर्निंग में. So इसके लिए अदर नेम जो दिया है इसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं हम लोग, हिक्सियन एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि प्रोफेसर जे.आर. हिक्स जो थे एंड आर.जी.डी. एलन, दोनों ने हिक्स एंड एलन ने ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिया था. ठीक है? सो इसके लिए इसका नाम क्या है? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का नाम क्या है? इंडिफरेंस कर्व हिक्सियन एनालिसिस. ठीक है? सो ऑर्डिनल यूटिलिटी का छोटू मोटू नाम क्या है? छोटू मोटू नाम पहले तो एक है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, दूसरा है हिक्सियन एनालिसिस. ठीक है जी? ओके, चलो. सो कौन से दो इकोनॉमिस्ट ने दिया था ये? हिक्स एंड एलन. सो व्हाट इज द फुल नेम ऑफ हिक्स? मिस्टर जे.आर. हिक्स एंड आर.जी.डी. एलन. ठीक है? सो 1934 में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था. आर्टिकल का नाम था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू. दैट वाज द नेम. प्रेजेंटिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. सो एक आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं ना, काइंड ऑफ दैट ऐसे आर्टिकल आया था, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू. So under this they have explained indifference curve analysis. So
इनडायरेक्टली दे हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्लियर है ये? ठीक है, आगे देखो अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। सी दिस, सो दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व। एक गुड y ले लिया, एक गुड x ले लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, जिस पॉइंट पे दोनों टच कर रहे हैं कर्व को, ठीक है, तो वी कॉल दैट इज अ लोकस। वेरियस लोकस कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो सारे इसके कर्व के साथ रिलेटेड आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं वो। हाँ जी, आ रहा है? समझ नहीं आ रहा? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? आई होप यू गेटिंग दिस। मुस्कान, she has joined now. Muskan, video on, and section also you need to mention. But अपने sections भी mention किया करो. Without section you people are not allowed to join the class. ठीक है बेटा? रीनेम मैं ही करती हूँ मुस्कान का 11F। Muskan, your video should be on beta. Without video I can't allow you to take the class. ठीक है? हाँ जी, so an indifference curve may be defined as the locus of various combinations of two goods which yield same total satisfaction to the consumer. So दो goods जो हमें same satisfaction level दे रही हैं और जिस curve के ऊपर maximum points आ जाएंगे, we call that is your indifference curve. क्या कहते हैं उसको? Indifference curve कहते हैं हम लोग। Clear है जी? तो ऐसे करके हमारा indifference curve बनता है, ultimately ऐसे। सो सी की तरह, कर्व मीन्स सी, ठीक है, जैसे हम लोग सी लिखते थे ऑलमोस्ट लाइक दैट, ये बन जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट स्केड्यूल फॉर दिस। देखो अब ये इन्होंने सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है। गुड एक्स है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एग्स इन्होंने लिखा है, यहाँ पे बिस्किट्स लिख दिया वाई, ठीक है, बनानास। सो कॉम्बिनेशन को इन्होंने गुड एग्स बना दिया ऐसे। ठीक है, वैसे हमारे पास दो है, बनानास एंड बिस्किट्स। यहाँ पे गुड एक्स एक होगी, गुड वाई दूसरी होगी। ठीक है जी, सो ए इज इक्वल टू देखो 1 है एंड 12। तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल 1 इंटू 12 12 है। ठीक है, दूसरा वाला देखो 8 प्लस 2 10 है, इन्होंने दिया। फिर उसके बाद फिर सेटिस्फेक्शन लेवल है 3 प्लस 5। ठीक है, उसके 3 यूनिट्स हमें सेटिस्फेक्शन दे रहा है या 5 यूनिट हमें सेटिस्फेक्शन दे रही है, सेम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद 4 एंड 3। सो बिस्किट्स के 4 यूनिट्स एंड इसके 3 यूनिट्स हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, सो स्केड्यूल की फॉर्म में इसको बना के हमने फिगर बना देना है यहाँ पे। so, जैसे ग्राफ ड्रॉ करते थे वैसे ही सिंपल ड्रॉ करना है। ठीक है जी, ई जो कॉम्बिनेशन है उसमें उन्होंने बोला 5 यूनिट्स ऑफ बिस्किट्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ बनानास, सो दे आर टेकिंग दीज इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, आगे आपका फिर से सुबह वाला जो पॉइंट था मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या है? एक जो पर्सन है, पवन इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? ऐसा कौन सा जोक सुनाया मैंने? हाँ जी मिस्टर पवन, हमें भी जोक सुना दो जो हंस रहे हो जिस बात पे। मैम मैसेज आया है, सो प्लीज थोड़ा रिएक्शंस कंट्रोल। Okay, so monotonic preferences means that a rational consumer always prefers more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction. मैंने मॉर्निंग में भी ये चीज समझाई थी, कम पैसे खर्च के ज्यादा चीजें मिल जाए तो हम लोग खुश होते हैं। एक के साथ एक फ्री, दिस इज द ओनली वे दे आर इम्प्रेसिंग यू। प्राइसेस भी उन्होंने एक के रख लेने हैं, दिखाना है, और जब उनके पास एक्स्ट्रा चीजें पड़ी होती हैं, दे वांट कि हम अपने कंज्यूमर्स को हैप्पी कर दे, तो दे ऑलवेज गिव मोर देन वन। सो आपको वन एक के साथ एक फ्री मिलता है, हम लोग भी खुश हो जाते हैं, यार एक के पैसे खर्च के दो चीजें मिल गई, है ना? सो रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज थिंक लाइक दिस, सो वी ऑलवेज चूज वन गुड ओवर अदर। ठीक है, सो अब एक के साथ देखो आपके पास कॉम्बिनेशन था। मुझे मैं एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। व्हेन वी वर मी एंड माय ब्रदर वर फॉर द शॉपिंग ऑफ दिवाली, जब हम लोग गए तो वी वेंट टू डी मार्ट जलंधर। ठीक है, बस मुझे थोड़ा-सा काम था तो वहाँ पे हम लोग साथ में गए, मैं और मेरा भाई दोनों थे। सो
on that day what happened, actually we were just looking forward some of the things कि हम लोग घर के लिए कुछ चीजें ले ले खाने पीने की, ठीक है। मेरा ये होता है कि खाने पीने की चीजें खाते रहो, बनाते रहो, सबको खुश करते रहो, बस ये चीज होती है ना। तो आई ऑलवेज डू इट लाइक दैट। तो मैंने क्या किया, वहां पे ना दिवाली थी तो हमें था चलो कुछ स्वीट्स अगर कुछ अच्छी सी मिलती हैं तो वी कैन बाय दैट। अब वहां पे क्या था, दो ऑप्शंस थी, दो बड़ी अच्छी ऑप्शन मुझे मिली। एक तो थी सोन पापड़ी, सोन पापड़ी बड़ी टेस्टी होती है ना। तो मुझे देख के हो गया चलो स्वीट्स है। आई मतलब जनरली आई रियली लाइक टेक वेरी लेस ऑफ स्वीट्स, मुझे मीठा इतना ज्यादा खाना पसंद ही नहीं है, बहुत कम खाती हूँ। तो जो सिलेक्टेड चीजें वही खानी है मैंने, मेरा ये सिस्टम होता है। सो आई बॉट, एक तो मैंने ली वो सोन पापड़ी, उसके साथ भी यही था ऑप्शन कि एक के साथ एक फ्री है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। तो हमने वो ले लिया। फिर उसके बाद था पेठा। पेठा क्योंकि दिवाली में ना जब भी हम चीजें लेते हैं तो सोन पापड़ी में भी मिक्सिंग, क्योंकि सिंथेटिक खोया वगैरह जो होता है उसमें यूज नहीं होगा। सो आई प्रेफर टू बाय दैट वन। एंड अनदर थिंग वाज पेठा। पेठे की मेरा होता है, मैं एक मिठाई खुद बनाती हूँ घर पे। लाइक पेठा है ना, तो पेठा को क्रश करके, मतलब क्रश या कद्दूकश कर लो, जो भी आप करते हो, ग्रेटिंग करके, है ना। तो उसकी ग्रेटिंग कर लो, या फिर अगर चॉपर है तो चॉपर में उसको कर लो, प्रॉपर चॉप कर लो, तो वो छोटे-छोटे पीसेस हो जाते हैं। ऐसे ही आप लो जो आपका पनीर होता है, चीज़, ठीक है? उसको ले लो और दोनों को मिक्स कर लो। पेठे का जो मीठा होगा वो बैलेंस हो जाएगा, और जो आपका है पनीर, वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी मोर हेल्दी, ठीक है? मैं मतलब जनरली अगर अपने घर पे हो तो ऐसे स्नैक्स बना लेती हूँ खुद, मतलब उसके अंदर बादाम काट के लगाओ, ऊपर जो कोकोनट का बुरादा होता है वो लगा दो, ग्रेटेड कोकोनट आता है ना उसका, जो पाउडर सा फॉर्म में होता है, वो लगा लो। इट्स लाइक अ डिलीशियस मिठाई आप घर पे खुद बनाते हो, और आपको पता प्योरिटी खुद आपने देखी है। घर में खुद दूध से ही चाहे वो बना लो, क्या कहते हैं दिस चीज़ बना लो, तो वो छोटे-छोटे वैसे ही कम हो जाती है। नहीं भी उसकी बाइंडिंग होगी तब भी ठीक है। तो हम लोगों ने उसको मिक्स करके वो प्रॉपर बना लेते हैं। तो इट्स लाइक वेरी टेस्टी वन, एंड मीठा भी हमारा कंट्रोल हो जाता है, वी कैन ईट हेल्दी एट होम। सो मैंने वो चीज़ें दोनों देखी कि एक के साथ एक फ्री है, चलो जी ये तो बेनिफिट हो गया, एंड इट वाज़ रियली वेरी गुड। मतलब इट वाज़ वर्थफुल। मैंने पैसे ज़रूर खर्चे, एंड क्वालिटी वाज़ आल्सो गुड, एंड अदर लाइक वो टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, दोनों चीज़ों का। सो इट वाज़ लाइक अ वर्थफुल, सम टाइम इट हैपेंस। तो अब देखो, अगर उसी के जैसी और भी 2-3 पड़े थे वहाँ पे, तो मैंने किसको प्रेफ़र किया? एक के साथ एक प्रेफ़र कर रही हूँ मैं। क्यों? बिकॉज़ आई एम गेटिंग मोर सैटिस्फैक्शन विद दैट। मुझे पैसे खर्चने हैं, मैंने कंपेयर किया पैसे कितने खर्चे, उस हिसाब से मैंने एक चीज़ को उसके दूसरे के ऊपर प्रेफ़रेंस दे दी। सो दिस इज़ मोनोटोनिक प्रेफ़रेंस, ठीक है? इन सिंपल वर्ड्स उन्होंने क्या बोला है, मोनोटोनिक प्रेफ़रेंसेस इम्प्लाइज़ दैट कंज़म्पशन इंक्रीज़ेज़, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ेज़। अगर हमारी कंज़म्पशन इंक्रीज़ होती है, टोटल यूटिलिटी भी तो इंक्रीज़ होती है। सो इस पॉइंट पे वो कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफ़रेंसेस हम लोग हमेशा मान के चलते हैं, हर रैशनल कंज़्यूमर की मोनोटोनिक प्रेफ़रेंसेस होती हैं। सो वी चूज़ ओवर वन गुड, ठीक है? हम लोग अदर गुड्स को छोड़ के एक गुड जो है उसको चूज़ कर लेते हैं। सो दिस इज़ मोनोटोनिक प्रेफ़रेंस। मोनो मीन्स वन, ठीक है? सो मैंने बाकी सारी छोड़ी, और जो मेरे को अच्छा लगा, मुझे बेनिफिट भी लगा, प्राइस भी ठीक था, ठीक है? और दो क्वांटिटी वाज़ आल्सो गुड। अगर मैं कंपेयर करती, अगर 2 चीज़ें भी लेती, तो अगर मुझे एक के साथ एक फ्री भी मिल रहा है, तब भी प्राइस देखती तो प्राइस भी कम था, और चीज़ें भी उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा आ रही थी। So it was all preferable. We always think like that as a consumer. मतलब अभी तो आप चलो छोटे हो काफी, when you going to be like आपकी भी मैरिज हो जाएगी, आप भी बड़े हो जाओगे, तो you will also prefer the things like I am telling you. So monotonic preference वाला point आपके लिए भी आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है consider two goods, apples and bananas. Suppose two different bundles are there, 10 apples, 10 bananas. ठीक है, एक ये है, एक दूसरा है 7 apples and 7 bananas. ठीक है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या होगी? अब आप कंज्यूमर हो तो आप क्या प्रेफर करोगे? एक में आपके पास 10 केले हैं, 10 सेब है, ठीक है? दूसरे वाले में 7 केले हैं, 7 सेब है। हाँ जी, मैं देखूँ जरा कौन है रैशनल कंज्यूमर? स्नेहिल बताएगा, स्नेहिल बता। अनम्यूट। 10 apples and 10 bananas, I think. ऑब्वियसली सब देखो, वी डोंट हैव अ सिंगल थॉट इन आवर माइंड।
Reason is being, we always prefer more things because we always think more things are always giving us more satisfaction. Mr. Ritik Nanda, your video is off. Rhythm Rishi, your video is off. Without video, I can't take you in the classes. मैं फिर बोल रही हूँ, खुद लीव कर जाओगे बेटर है. बार बार वार्निंग देने के लिए हमें नहीं बोला उन्होंने फिर. हाँ जी ऋतिक, नई क्लास लगानी तो लीव कर दो बेटा. वीडियो ऑफ करने से क्या है. रिदम बेटे, आई कांट टेक यू इन द क्लास विदाउट वीडियो. ठीक है, सो प्लीज लीव द क्लास, बेटर है. बेटे सॉरी, आई कांट हेल्प यू फॉर दिस. नॉट अलाउड. हाँ जी ऋतिक जी, आपकी वीडियो भी ऑफ रहेगी तो फिर आई कांट हेल्प यू. इट्स ऑफ. अब ठीक है. ओके, सो यू गॉट दिस पॉइंट. मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या है? गॉट दिस? ठीक है बेटा जी. हाँ जी. ओके, सो शेल वी मूव टू द नेक्स्ट वन. अब इंडिफरेंस मैप. द वर्ड इज इंडिफरेंस मैप. जब हमारे पास कितने सारे इंडिफरेंसेस कर्व हो, ठीक है, कितनी सारी सी जो मैंने आपको बोला है, ठीक है. नाउ रिदम इज जस्ट सेंडिंग मी मैसेज, आई कांट हेल्प यू. हाँ जी. सो सी, सेट ऑफ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज, यहाँ पे ना लिखा है आई एम, सो दैट इज इंडिफरेंस मैप. सो इंडिफरेंस मैप है, ठीक है. सो इंडिफरेंस मैप के लिए क्या होता है, जितने भी हम लोग इंडिफरेंस कर्व्स हैं उनको इकट्ठा ले लेते हैं एक ही डायग्राम के ऊपर, ठीक है. सो वी कॉल दैट इज योर इंडिफरेंस मैप, ठीक है. सो एक चीज यहाँ पे ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, दैट इज a lower level of IC represents lower level of satisfaction. मतलब IC कौन सा lower level पे होगा? मुस्कान बताएगी. मुस्कान बताइए. Unmute yourself and speak. IC1. IC1 वाला, क्योंकि सबसे लोवेस्ट लेवल पे वही है, ठीक है. सो सबसे लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे होगी, ठीक है माय डियर. दिस इज द पॉइंट. स्नेहल, प्लीज गिव हिम इंफॉर्मेशन कि हम लोगों ने भी प्रॉपर सर्टिफिकेट साइन किया हुआ है. सो वी आई कैन टेक यू विदाउट वीडियो इन माय क्लास. हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है. रिदम को एक बार आप बाद में बता देना, ठीक है. ओके, सी द नेक्स्ट थिंग नाउ. नेक्स्ट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो आप लोगों ने मॉर्निंग में भी मैंने आपको बताया था क्या था. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या है? सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जनरली क्या होता है, हमें दिखाता है कि एक जो कमोडिटी है दूसरी को हमने सब्स्टिट्यूट किया तो व्हाट वी गॉट, हाउ मच चेंजेस वी गॉट. मैंने आपको बताया एक चीज माइनस होगी, एक चीज ऐड होगी, ठीक है. जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ऑब्वियसली वो माइनस होगी, ठीक है. और जो सब्स्टिट्यूट हो गया, सॉरी, जो सब्स्टिट्यूट हो गया वो माइनस हो गया. एंड नाउ ही इज टेलिंग मी कि मुझे ऐड कर दो आई ऑन द वीडियो.
हाँ जी, मतलब जानबूझ के बंद करते हो आप लोग वीडियो, बड़े गंदे बच्चे हो ऐसे तो फिर। रिदम वीडियो ऑन होगी तो ठीक है, अदरवाइज यू विल नॉट बी इन द क्लास अगेन। हाँ जी, बेटर है, ठीक है। वी आर नॉट अलाउड टू टेक एनी चाइल्ड विदाउट वीडियो इन द क्लासेस, ओके। हाँ जी। सो हाउ मच ऑफ वन कमोडिटी सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर, कितनी हमने कमोडिटी करी एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट। एट व्हाट रेट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन कमोडिटी फॉर अनदर इन हिज कंजम्पशन पैटर्न, कितना हम लोगों ने कंज्यूम किया एक कमोडिटी को, दूसरा कितना हमें चाहिए था, उस हिसाब से जब हम लोग करते हैं दैट इज वी कॉल इट एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने एग्जांपल सुबह दिया था आपको, एक टीचर नहीं आता तो दूसरा टीचर आपका लेसन लेता है, सब्स्टिट्यूशन लेसन लेता है। सो इट्स लाइक सेम, जो टीचर नहीं आया उसका हमने क्या किया, माइनस हो जाता है हमेशा, ठीक है। एंड जो टीचर आया आपकी क्लास में उसने तो गेन किया। सो दिस इज एग्जैक्टली द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक टीचर सपोज आपके अकाउंटेंसी के टीचर लीव पे थे एंड उस वो वाले सर ने आज आपकी क्लास नहीं ली, उसकी जगह पे मैंने क्लास ले ली, तो इकोनॉमिक्स का तो गेन हो गया, अकाउंटेंसी का लॉस हो गया, ठीक है। अब वो जो गेन एंड लॉस है वो दोनों चीजें जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी ऑब्वियसली। सो वी कॉल दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कितना हमने सब्स्टिट्यूट किया एक दूसरी चीज को, ठीक है। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज पैरेलल टू द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इन द मार्शलियन एनालिसिस ऑफ डिमांड। सो अब मार्शलियन जो अप्रोच थी उसके उन्होंने बताया है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसके पैरेलल आ जाती है, कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इन द मार्शलियन एनालिसिस ऑफ डिमांड, उसके पैरेलल हो जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है, डायग्राम वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है वैसे, ये आप देख सकते हो कौन सी चीज हमने कितनी करी है। यहाँ पे 5 यूनिट्स का सेक्रीफाइस था, 15 से 10 हुआ ना बनाना का, और यहाँ पे 1 यूनिट का था तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया 5 यूनिट्स ऑफ बनाना हमने क्या करे हैं, लूज करे हैं फॉर गेनिंग 1 यूनिट ऑफ एप्पल्स। सो 1 से 2 हुआ था ना, यहाँ पे गेन हुआ, यहाँ पे 5 का लॉस हुआ, फिर आगे 10 से 6 हो गए बनाना, एंड यहाँ पे 2 से 3 हो गए एप्पल्स। सो इन दिस टर्म व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे 4 यूनिट्स ऑफ बनाना वी हैव लॉस फॉर गेनिंग 1 यूनिट ऑफ एप्पल, ठीक है। सो दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये चीज बताई मैंने आपको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट देखो, वाई एमआरएस डिमिनिशेस, किसी भी चीज को बार 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 वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूम करते हैं तो इट्स यूटिलिटी गोज डाउन, मार्जिनल यूटिलिटी गोज डाउन। सो दिस इज योर लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो आता है पॉइंट वो है। फिर आगे था एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो एजम्पशंस में क्या है, टू कमोडिटीज होनी चाहिए एक्स एंड वाई, विदाउट टू कमोडिटीज इंडिफरेंस कर्व हम लोग ड्रॉ ही नहीं कर सकते, रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी हमारा होना चाहिए, कम भी होना चाहिए जब एक चीज को हम लोग यूज करें दूसरे के साथ। ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब इट शुड बी इन द रैंक्स, और आपके पास डिफरेंट बंडल्स होंगे जो कॉम्बिनेशंस होंगे। नॉन स्टेशिटी मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा, सेचुरेशन का पॉइंट कोई नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग यूज कर रहे हैं उसके नीचे फिर यूज करते जा रहे। ट्रांसिविटी, व्हाट डज इट मीन, ट्रांजिटिविटी, हाँ जी, ट्रांसिटिविटी क्या होता है ये बताएगा, नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। एग्जैक्ट जो कॉम्बिनेशन है वही चीज हमें बताएंगे, एंड ट्रांसिविटी मतलब उन चीजों की आपस में क्या कहते हैं हम लोग, मतलब कोऑर्डिनेशन कैसी है। देखो अगर एक को लूज किया तो दूसरी गेन कर रहे हैं हम लोग। जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन, आई हैव अ
चलो यस, सो आई रिजेक्टेड माय फ्रेंड्स कॉल फॉर यू, ठीक है। चलो अब हमें भी पढ़ना है अच्छे से, इसलिए वी आर गिविंग यू टाइम, सारी चीजें पीछे छोड़ के हम भी टाइम देते हैं आपको, ठीक है। नो डाउट हमारी ड्यूटीज हमें भी फर्स्ट लगती है, आपको भी ऐसी करना है बेटा, पढ़ना अच्छे से है, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कौन सी आती है पहले तो, इट ऑलवेज स्लोप्स डाउन, कर्व देखा इंडिफरेंस कर्व कैसा था, इट ऑलवेज स्लोप्स डाउन, ठीक है। सो इंडिफरेंस कर्व कभी भी ऐसे करके एक दूसरे को काटते नहीं है, ये ऐसे एक सी है, फिर उसके बाद दूसरा सी है, फिर तीसरा सी है, ऐसे बनते जाएंगे, दे नेवर कट ईच अदर। सो इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी थिक, थिक नहीं होंगे, जितनी इनकी एक की होगी हम कहते हैं कि थिकनेस दूसरे की भी उतनी होगी, सो बहुत ज्यादा थिक नहीं होंगे, इट रिमेन सेम। नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स पता है ना, कॉन्वेक्स मिरर, सो कॉन्वेक्स मींस ये आपका जो ओरिजिन पॉइंट है वो पीछे हो गया इसका, और सी मैंने आपको सी बोला था ऐसे करके, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट, सो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होंगे, कॉनकेव होता तो मैं उल्टा ऐसे करती, ये ऐसे करके होगा, ठीक है। तो फिर हम टोपी वाली फॉर्म में होते, ठीक है। सो अभी हम टोपी वाली फॉर्म में नहीं है, हम कोली वाली फॉर्म में है, ठीक है। कॉली ऊपर की तरफ होती है ना, इधर वाली साइड को अगर हम ऐसे रखें तो सी फॉर्म में यू कैन सी दैट, ऐसे याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, अब हमने अभी किया था, लोअर लेवल वाला लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताएगा, हायर लेवल वाला हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, यहाँ पे हमारा इंडिफरेंस कर्व वाला कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, अब इनमें से हाईएस्ट वाला कौन सा होगा, कौन बताएगा, ऋतिक बताएगा, ऋतिक हाईएस्ट वाला कौन सा होगा, आईसी, मैम IC5। यस राइट, ठीक है। सो लोअर वाला जो नीचे आएगा वो होगा लोअर सेटिस्फेक्शन वाला, और जो सबसे ऊपर वाला होगा दैट विल बी हायर सेटिस्फेक्शन लेवल वाला, ठीक है बेटा जी। चलो आगे है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट द एक्सेस, एक्सेस मतलब वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस कभी भी उनको टच नहीं करता, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता उनको, ठीक है। सो दिस दे आर टॉकिंग अबाउट, दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर इंडिफरेंस कर्व। सो ये आपकी ऑर्डिनल अप्रोच के ही सारे पॉइंट्स हमने करे हैं। अब इसके बाद है हमारे पास कुछ पॉइंट्स, सो कौन कौन से पॉइंट्स है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कौन बताएगा मुझे, दिलबाग बताएगा, दिलबाग बताओ, give me two differences between ordinal and this cardinal utility approach, पढ़ा है सर आपने, बोलो आंसर, कार्डिनल, यस कार्डिनल एंड ऑर्डिनल बोथ, डिफरेंस बताना है। कार्डिनल में वो नंबर देते हैं और ऑर्डिनल में रैंक देते हैं। यस, वन मोर डिफरेंस, एक ये हो गया, एक मैम जैसे ऑर्डिनल में मैम सेटिस्फेक्शन कितना हुआ है मैम उसको रैंक देंगे, जैसे बनाना और एप्पल का ही एग्जांपल ले लीजिए मैम। तो उसमें उसमें अगर बताना हो कि कौन सा, जिसको मैम हमने जैसे मैम एप्पल को हमने 1 ले लिया तो मैम उसको मैम मोर वो हमारे सेटिस्फेक्शन मैम उसको ज्यादा मिली है, इसलिए हमने मैम उसको ज्यादा। ये क्या बोल रहे हो सर, नहीं पहले ठीक है, चलो हाँ, पहले कर दिया मैम, नहीं पहले आप, मतलब लिख दे। विच इज मोर रियलिस्टिक, ये बताओ, विच इज मोर रियलिस्टिक, कार्डिनल और ऑर्डिनल, कार्डिनल, ऑर्डिनल, वो कैसे? मैंने बताया तो था, मैं कहती हूँ एक ही, सिर्फ अगर कार्डिनल की बात करूंगी तो सिर्फ नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मेजर कर रहे हैं, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में पूरा अगर मैं आपका करेक्टर पूरा कर रही हूँ स्कैन तो इट इज ऑर्डिनल, सो ऑर्डिनल ज्यादा रियलिस्टिक हो जाता है, ठीक है बेटा। हाँ जी, इनडिफरेंस कर्व कौन बताएगा, इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन,
ये बताएगी मुझे, अब ये बताएंगी मुझे, कौन बताएंगी? मुस्कान बताएगी, मुस्कान प्रीत। यस मिस मुस्कान प्रीत जी, व्हाट इज indifference curve? Ma'am, indifference curve is the graphical representation of all the alternative bundles or combination of the two goods over which the consumer is indifferent. Right, ठीक है, ठीक है। So indifference curve is the combination of two commodities, ठीक है, जिनके वेरियस कॉम्बिनेशंस होंगे, हम उसको इंडिफरेंस कर्व के ऊपर शो कर देंगे, ठीक है। एंड लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वी कैन से दैट वी प्लेस इट ऑन इंडिफरेंस कर्व, एक कर्व के ऊपर प्लेस कर देंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में शो कर देंगे, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा इंडिफरेंस मैप क्या होता है? This will be answered by Mr. Nanda. Ma'am, Yes. the collection of indifference curves make us indifference map. Or we can say the family of indifference map. Indifference curves. Yes. ठीक है, that is a indifference map. Okay. So now मुझे कौन बताएगा monotonic preferences? Monotonic preferences. Rhythm Rishi, बताओगे monotonic preferences? What are monotonic preferences? मैम Tell me that. मोनोटोन वो है जो कि मतलब एक कंज्यूमर वो करता है कि एक गुड से ज्यादा मतलब कंज्यूम करना चाहता है और जिसमें उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। Right, very good. ठीक है, हाँ जी। So last वाला करते हैं, MRS वाला मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, सच आपको पता है, ठीक है। So नेक्स्ट वाला आ जाएगा मेरे पास assumptions of और properties of indifference curve। एक जना assumptions बता दे, assumptions कौन बताएगा मुझे? वंशिका assumptions बताओ बेटा, assumptions of indifference curve। Ordinal, first it should be measured in the it should be rank wise, so it is an ordinal approach, non-staticity, transitivity, next the indifferent rational consumer should be there, and two commodities are there, and law of diminishing marginal utility is also there, fine, ठीक है, हाँ जी। So next is properties मुझे कौन बताएगा? properties वाला बंदा कौन है? properties बताएगी मुस्कान प्रीत। चलो। Ma'am, indifference curve is convex to the origin. Indifference curve slopes downwards. Indifference curve, two indifference curve never intersect each other, and higher the indifference curve represents a higher level of satisfaction. And vice versa also you can say. One more point, they never intersect the edges. Axis जो आपकी थी उसको कभी नहीं करता इंटरसेक्ट, ठीक है, वो पॉइंट भूल गए, ठीक है जी। चलो फिर आज के लिए बहुत है, इतना ही, इट्स 4 o'clock, ठीक है, चलो हैप्पी ओके। सो नाउ यू आर गेटिंग 2 minutes टू टॉक। अगर आपने बात करनी है तो आप बता दो, नेक्स्ट टॉपिक बता दो कौन सा रिवाइज करवा दूं आपको, ठीक है। सो नाउ आई कैन गिव यू ऑप्शन टू अनम्यूट योरसेल्फ। यस, हाँ जी। मैम मैंने पूछना था, वो हर्षनूर जिसकी आपने उसको फाइल भेजी थी ना, मैं ही इज माय नेबर, सो ही वाज सेइंग दैट आप बोल रहे थे कि जो ये 18 डेट से पेपर शुरू होते हैं ये स्कूल में होंगे। बेटे आई जस्ट टेल यू, देखो वहाँ पे ना ऑप्शंस है, आप ऑनलाइन भी ऑप्ट कर सकते हो, आप लोग जूम के थ्रू भी दे सकते हो, मतलब वन टीचर विल बी अलॉटेड फॉर यू, आप लोग ऑनलाइन बैठोगे, सबके सामने बैठ के पेपर कर रहे हो, ठीक है।
सो दैट माइट बी ऑल्सो पॉसिबल. ऑनलाइन ही है, फिर वो भी है तो ऑनलाइन, बट यस द टीचर इज देयर. काफी स्कूल जैसे पेपर ले रहे हैं बच्चों के. अनदर थिंग इज, आपका स्कूल में अगर आपने इंटायरली करना है तो फिर आपको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करवा दी जाएगी. आपने अपनी अंडरटेकिंग लिख के भेजनी है कि आई वांटेड टू डू दिस. सो आपको ये भी थोड़े दिनों में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जब आपके एग्जाम स्टार्ट है ना. ओके. ठीक है, तो ये आपसे भी पूछा जाएगा. तो इट माइट बी अपडेटेड विद लाइक FB, और अदरवाइज आपके क्लास टीचर्स आपसे पूछेंगे और जिसकी जो प्रेफरेंस होगी उसके अकॉर्डिंगली वो एग्जाम बच्चा दे पाएगा. ठीक है, मैम ये आप फाइनल एग्जाम्स के बारे में बता रहे हो? मैं प्री बोर्ड का बता रही हूँ बेटे. फाइनल तो ऑफलाइन ही होने हैं, वो तो पक्के चांसेस है ऑफलाइन ही होंगे, क्योंकि CBSE अगर बच्चों के उन्होंने ऑनलाइन ही लेने तो ऑफलाइन ही होंगे ना ऑब्वियसली. ठीक है बेटा जी, इज दैट क्लियर टू यू? सो नाउ आई कैन एंड द क्लास. मेरी Thank ग्रेड you, ma'am. 9 के बच्चे भी एंटर करना स्टार्ट हो गया अभी तो. ठीक है बेटा जी, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू नाउ ऑन मंडे. ठीक है, हैप्पी वीकेंड टू यू ऑल. थैंक यू मैम. ओके, प्रोजेक्ट्स अपने कंप्लीट कर लो अच्छे से. ठीक है बेटा जी, वो भी करने अभी शुरू ही नहीं. करो करो बेटा, यू नीड टू डू इट. मार्क्स है आपके Yes. लगने. हाँ, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. Ma'am, thank you. ओके, बाय बाय.